हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको जेराल्ड मैनले हॉपकिंस 1884 टू 1889 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई डज द पोएट कंप्लेन अगेंस्ट गॉड इन द पोएम दाउ आर्ट इंडीड जस्ट लॉर्ड? आंसर, हॉपकिंस could not get name and fame after a long period of his life, so he became frustrated, and this poem is the result of his frustration. He thinks that in this world everything happens according to the will of God, and in his case God is not paying his attention towards him, while the bad people and the sinners are progressing. So the poet complains about his failure and he wants the blessing of God. Question 2. Why is this sonnet regarded as a religious sonnet? Answer. In this sonnet, from the beginning to the end, the poet remembers God and he points out that for the present condition of the world God is responsible. He realizes the fact that God is the greatest power in the universe. So when the dishonest people progress, it is the mistake of God. The poet is not hopeless about the attitude of God, because at the end of the poem he requests God to give him the power to progress. Objective type question. Hopkins was born in. Answer, 1884. Question. First collection of his poems was published in. Answer, 1918. Question. Hopkins died in. Answer, 1889. Question. The poem Thou Art Indeed Just Lord is a. Answer, sonnet. Question. Hopkins is considered a. Answer, modern poet. Question. The epitaph of the poem Thou Art Indeed Just Lord has been taken from. Answer, the Bible. Question. Sonnet of his last period were called terrible sonnet by. Answer, Robert Bridge. Question. The poems of Hopkins were published posthumously by. Answer, Robert Bridge. Question. Who involved the new technique sprung rhythm? Question. G.M. Hopkins. Question. Hopkins was appointed professor of classics of the. Question. Answer, Dublin University. Critical opinion on Hopkins. First, a critic. His appreciation of nature, his reading of the great English poet, particularly Shakespeare, and of the Bible are all evident. Often he saw that blend of the emotional and intellectual which distinguishes the poetry of the 17th century. Metaphysicals, but whatever their sources or affinities, the images of Hopkins' poetry are distinctively his own, always precise and vitally illuminating, usually briefly expressed, and often suggesting more than one possible interpretation. Thanks, best of luck. मैं कुछ अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरा नाम कृष्ण गोपाल है, सन ऑफ श्री मैयादीन, विलेज पोस्ट राहक, राठ, हमीरपुर, यूपी, इंडिया। मैं महर्षि विद्या मंदिर में एज ए व्यवस्थापक काम करता हूँ। मुझे 5 साल हो गए वहाँ काम करते हुए। मेरा MA BEd है। मुझे अभी इस समय 17 अगस्त 2020 को सैलरी 6,000 रुपये मिल रही है। अब बताइए, मैं अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करूं? मैं किराए से रह रहा हूं। मेरा प्लाट है। 1 साल हो गया है फार्म डाले हुए, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट मीन्स जो वेतन के अलावा भी कुछ रुपए कमाते हैं, उनकी वैल्यू ना तो उनके लड़के जानते हैं और ना ही उनके परिवार वाले जानते हैं, और ना जानते हैं वो भी कि किस प्रकार रुपया हम आ रहा है और किस प्रकार जा रहा है।
अभी तक मैं तहसील के और डोडा ऑफिस के कई बार चक्कर लगाया आया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, जो वेतन के अलावा और नोच रहे हैं गरीब लोगों को, अगर ऐसे देश में ये रहेंगे तो उस देश का क्या हाल होगा, ज़रा सोचिए आप लोग भी। एक पढ़े लिखे होकर जब मैं इतना पढ़ा, मेरे माता पिता बुढ़ापे में क्या आशा लगा रहे होंगे कि मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा। बच्चा का खुद ही नहीं भरण पोषण हो रहा है तो वो कैसे जो है, महर्षि विद्या मंदिर हो या जो भी सरकारी हो, सभी लोग ये डबल पैरोल बनाते हैं, कुछ देते हैं कुछ लेते हैं। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि जितने बुद्धिजीवी लोग हैं ज़रा इस पर ध्यान दें। मेरा एक कन्हैया पाल अजनारी मर्डर केस हो गया। कोई व्यक्ति अपना जानबूझ के फांसी नहीं लगाता, चाहे वो शराब पीता हो, चाहे वो जुआ खेलता हो, लेकिन जो है उसके साथ जो है ये घटना हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी भारतीयों से कि अगर सुधार चाहते हैं वाकई में अपने देश का, अपने लोगों का, तो जो मेहनत कर रहे हैं उनको तो मिलना ही चाहिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो दिन भर टाइम बर्बाद करते हैं। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ एक अच्छे भविष्य के लिए। इसीलिए मेरी गुजारिश है, मैंने उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों से 2011 में बीएड किया था। समस्त ज़िलों में मेरे पिताजी ने रुपए कर्ज पे उठाकर ब्याज पर जो है फार्म डाले थे। फ़ीस वापसी भी कहा था कि फ़ीस वापसी हमको लेना नहीं है। हमको तो योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि हमको जॉब चाहिए। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं पर्सनल, ये पूरे हमारे जितने भी शिक्षित भाई हैं उन सभी के लिए ये रिक्वेस्ट है। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।